ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਨਸਾਈਟਸ ਵਿਦ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਫਾਊਂਡਰ ਐਂਡ CEO ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ ਚੈਨਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਦ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗੁਰਲੀਨ, ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ? ਆਈ ਐਮ ਗੁੱਡ ਸਰ, ਹਾਊ ਯੂ? ਆਈ ਐਮ ਡੂਇੰਗ ਗ੍ਰੇਟ। ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਅੰਡਰ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਸੀਗੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਇੱਕ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਜ ਹੈ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲੀ ਐਤਕੀ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਰਲੀ ਤੇ ਬੜੇ ਡਰਾਈ ਜਿਹਾ ਵੈਦਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਵਧੀ ਆ। ਪੀਕ ਲੋਡ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ 'ਚ ਰਫਲੀ 30% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਦੀ ਸਰਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇੱਕ ਗੈਪ ਹੈਗਾ। ਦੂਜਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਹਾਂਗਾ PPCL ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪੈਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਫਨੀ ਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਰੰਟ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਣਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਬਟ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਕ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਡਰਾਈ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ 'ਤੇ ਰੱਖਤਾ। ਡਜ਼ ਇਟ ਮੇਕ ਐਨੀ ਸੈਂਸ? ਤੁਸੀਂ ਸਰਦੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਲੋਐਸਟ ਲੋਡ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ। ਜਨਵਰੀ ਫੈਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਨਸਰਟਨ ਹੈ। ਯੂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਲਟੀਪਲ ਸੋਰਸ ਕਰੋ। ਅਨਸਰਟਨ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸੋਰਸਿੰਗ ਕਰੋ? ਯੂ ਫਾਈਂਡ ਆਲਟਰਨੇਟ ਸਪਲਾਇਰਸ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ਪਿਆ? ਸੈਕੰਡਲੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਘੱਟ ਕਰੀਏ। ਕੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਆਲ ਦੀ ਕੀ ਆਪਾਂ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਜਾਂ ਵਿੰਡ ਐਨਰਜੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ, ਦੂਜੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਜਾਈਏ। ਯੂਰਪ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈ ਅਪ ਹੋਇਆ, ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਐਟ ਦਿਸ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ। ਨੀਦਰਲੈਂਡਸ ਦੀ ਵਿੰਡ ਐਨਰਜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਆਲਟਰਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਆਊਟ ਕਾਜ਼ਿੰਗ ਐਨੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਨ ਕਰ ਪਾਉਣ, ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਤੇ ਕਰ ਪਾਉਣ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 100% ਨਾ ਸੀ, 60% ਸੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਹਿਊਜ ਸੇਵਿੰਗ। ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਪਾਈਏ। ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ। AC ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਜੀਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ AC 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਕੂਲਰ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਹਾਓ ਉਹਦੀ ਸਮਰਿੱਧੀ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਕੂਲਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੂਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ, ਵੀ ਨੀਡ ਨਾਟ ਟੂ AC ਬਹੁਤ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਲਟਰਨੇਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਉਹਨੂੰ AC ਓਰੀਐਂਟਡ ਕਰ। ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਗਲਾਸ ਫਸਾਡ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਯੂਰਪ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯੂਰਪੀਅਨ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀਟ ਲੈਣੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀਟਿੰਗ ਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੂਲਿੰਗ ਦੀ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜੋ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਇੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਇੰਚ ਦੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਤੇ PPCL ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ AC ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੂਲਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੂਲਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗਰਮੀ 'ਚ ਬੰਦਾ ਬੈਠੇ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਡਾਊਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੂਲਿੰਗ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਾਰਟਰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਟਰਨੇਟਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਸਟ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੀਕ ਲੋਡ ਹੈ ਕੋਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕੋਲੇ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਲੇ ਦੀ ਸੋਰਸਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਡਾਇਵਰਸੀਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਹਰ ਸਾਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੀ ਕੋਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲ ਸੋਰਸਿੰਗ ਰੱਖੋ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਵਾਈ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਮਿਸਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਲਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪੋਸਟ ਦੇਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪੋਸਟ ਦੇਤੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਰਪਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 2 ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਾਂ 2 ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਪਰਪਸ ਹੈ ਵਾ ਕਿ ਬੈਸਟ ਬੰਦਾ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ, ਮੋਸਟ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਬੰਦਾ ਬੈਠੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਬੈਠੇਗਾ ਉੱਥੇ।
दैट इज़ द प्रॉब्लम कि ਆਪਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲੀ ਵੀ ਵਾਂਟ ਦੀ ਮੋਸਟ ਕੈਪੇਬਲ ਪੀਪਲ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਟ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਮੈਟਰ, ਸਾਨੂੰ ਬੈਸਟ ਟੈਲੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਲੀ ਰਨ ਕਰੇ। ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਪੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪ ਮੈਨੇਜੀਰੀਅਲ ਆਊਟਲੁੱਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਬੰਦੇ MD ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਰੱਖੋਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੈਟਰ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾ ਦੇਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਸਟ ਇਫੈਕਟਿਵ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਟੈਲੈਂਟ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਰੀਜਨਲਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹਟਣਾ ਪਏਗਾ, ਮੈਰਿਟੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਬੈਸਟ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਰੋਲ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਣੀ ਅਸੀਂ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਨ ਮੇਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਐਂਡ ਟੂ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਮੈਨ ਮੇਡ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਟੂਪਿਡ ਮੈਨ ਮੇਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਲਾਨ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਓ ਜੀ ਅਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਦੋਨਾਂ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਪੀਕ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਸਿਆਣਾ ਕਹੇਗਾ? ਤੇ ਲੋਕੀ ਤੇ ਫਿਰ ਗਰਮੀ 'ਚ ਮਰਨਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਚਲੋ AC ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਇਟਸ ਓਕੇ, ਬਟ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਯੂਸੇਜ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਪੀਕ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਏਗੀ? ਖੇਤੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਡਰਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਦਾਣਾ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਮੋਇਸਚਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟ ਲਾ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਜੈਨਸੈਟ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸਟੇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਮਿਸਟੇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਹੌਰੀਬਲ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਾ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਚਲਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤੇ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਪਲਾਂਟ ਚਲਾਣੇ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਕੋਇਲਾ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਕੁਐਸਚਨਡ। ਇੱਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊ ਕੈਨ ਯੂ ਬੀ ਸੋ ਡੰਪ। ਸੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਸਟੇਟ ਬੱਸਿਸ ਟੂ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਚੇਂਜ ਲਿਆ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਨਾ ਲੁੱਟਣ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਦਿਓ, ਆਲਟਰਨੇਟ ਦਿਓ, ਆਪ ਹੀ ਰੇਟ ਡਾਊਨ ਆਉਣਗੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਪਰ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲਟਰਨੇਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। ਆਈਡੀਆ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਜੋ ਵੀ ਰੇਟ ਹੋਏਗਾ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਵੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਦੈਟ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ 에ਅਰਪੋਰਟ ਬਣਾਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਓਗੇ? ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਣਾ ਹੀ ਭੇਜਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਇੰਨੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਹੈ ਨਾ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਬਣਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਫਲਾਈਟਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆਂ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਵੈਸਟਡ ਇੰਟਰਸਟ, ਬੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਬਈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਓਨਰਸ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ CEO ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਲਾਈਟਾਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਾਲਾ 에ਅਰਪੋਰਟ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅਬਾਊਟ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਫਲਾਈਟਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਣ? ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਵੇ ਪਬਲਿਕ ਜਾਵੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹੁਣ ਵੇਖੋ UK, ਕੈਨੇਡਾ, US, ਈਵਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਕਰਨਾਲ ਪਾਣੀਪਤ ਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗੁੜਗਾਂਵ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਰੈਵਨਿਊ, ਇੰਨੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਰੈਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਜੀ ਬੱਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਟ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦੀ ਬਿਗ ਪਿਕਚਰ। ਯੂ ਗਾਇਜ਼ ਆਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋ, ਵੱਡਾ ਸੋਚੋ। ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਵੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਇਟ, ਆਪਾਂ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟੈਪ ਹੈ, ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਬੱਸਾਂ ਚਲਾ ਦਿਓ, ਪਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਧਾਓ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਬੰਦਾ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਫਲਾਈਟ ਫੜ ਲੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਲੈਟਸ ਇੱਥੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲਾਈਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਹੋਟਲਸ ਆਉਣਗੇ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੌਬਸ ਦੇਣੀਆਂ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡੀਪਲੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੋ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਟੁਡੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿਣ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਇਨਪੁਟਸ ਦਿੰਦੇ ਪਏ, ਆਈਡੀਆਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣੇ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਪਡੇਟਸ। PM ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ targets states with high fuel prices and urges them to cut VAT tax on diesel and petrol. Look, Gurleen, target is not the right word. Okay. He has requested those states, and central government has reduced its VAT on November 7th. Some states followed. And which states followed? जहाँ पे इलेक्शन थे, right? हमने याद है, हमने बात की थी कि ये प्राइस अभी नहीं बढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रहे हैं। 4 नवंबर को रफली $22-23 का एक बैरल ब्रेंट ऑयल था,
आज वो $105-10 पे है। तो 5 गुना प्राइस आपके रॉ मटेरियल के बढ़ गए हैं। और टैक्सेस तब कुछ स्टेट्स ने इंक्लूडिंग फॉर्चुनेटली हमारे पंजाब में भी कम हुए उस टाइम पे, क्योंकि इलेक्शन थे। एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स, क्योंकि पहली तो बात मैं एक चीज़ दोनों गवर्नमेंट्स को, ये इसको वैट से हटाओ। आप इसको जीएसटी रिजाइम में लेके क्यों नहीं आते कि पता है यही टैक्स लगेगा। आप ऑल्टरनेट सोर्सेज फ्यूल की सोचो, अपने रेवेन्यू की, ऑल्टरनेट सोर्सेज अपने रेवेन्यू की सोचो कि भाई ऑयल के ऊपर आपकी डिपेंडेंसी रेवेन्यू पर्सपेक्टिव से भी कम हो, कि आप अपनी मर्जी से, ये ना ओपेक सिस्टम है, वैट कितना आम आदमी को पता ही नहीं चलता, रेट बढ़ते जा रहे हैं। तो जब जीएसटी होगा पता इतना है और इतना गवर्नमेंट के पास जा रहा है। अब मैं कहता हूँ आप हाईएस्ट रेट लगा दो, फिर भी वी विल बी बेटर ऑफ, आप 28% लगा दो, पर इसको एक ट्रांसपेरेंट रिजाइम में रखो, ताकि हमें भी, आज ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रही हैं, जी आपने हमारा इतना देना था, इतने हम तो इसी से काम चला रहे हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी, टीएमसी हो, शिवसेना हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सब एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और आम आदमी कंफ्यूज खड़ा है कि पैसे ले कौन रहा है हमसे, उसको नहीं समझ आ रहा है, जा कहाँ पे रहा, टैक्स ले कौन कितना रहा है। हर वेबसाइट पे थोड़ी थोड़ी डिफरेंट इंफॉर्मेशन है। पहली तो बात कि अगर सेंटर ने 7 नवंबर को किया था, तो उस टाइम पे सारी स्टेट्स को कुछ ना कुछ करना चाहिए था, बिकॉज इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री। आम आदमी पे पेट्रोल, वो अपने काम पे जाने से पहले सोचता है, इट्स अ ह्यूज बजट, वो पता नहीं अपने किन ज़रूरी खर्चों से खर्चा निकाल के पेट्रोल के खर्चे बढ़ने शुरू हो जाते हैं। आज मैं हरियाणा की बात करूँ, पंचकुला से मैंने कल 107 रुपये के करीब पेट्रोल का प्राइस है। इट इज़ टू कॉस्टली। तो इसमें टैक्सेस अगर मेजर हैं तो गवर्नमेंट को भी प्लान करना चाहिए कि आप अपना रेवेन्यू कैसे, नॉन फ्यूल, ये तो नेसेसिटी है ना, तो आप लोगों की नेसेसिटी पे, बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया था 7 नवंबर को, तो अब कुछ तो देखो, कुछ स्टेट्स में प्राइस बहुत हाई है। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूँ या कुछ और स्टेट्स की बात करूँ, वहाँ पे वाकई प्राइस हाई है। तो इस सेंट्रल टैक्स तो सेम ही रहना ना हर जगह पे, इसका मतलब स्टेट टैक्स ज़्यादा है, तो आप उसको वापस लो। अगर आप कहते हो जी हमारी नंबर 1 स्टेट है, हम जीएसटी में कंट्रीब्यूट, इसका मतलब आपकी इनकम तो वैसे ही ज़्यादा है, सारी कंपनीज के हेड ऑफिस वहाँ पे हैं, सारे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल वहाँ पे रहते हैं, आपकी इनकम तो वैसे ही ज़्यादा होनी है, वहाँ पे स्पेंडिंग ज़्यादा होनी है। तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स ऑल्सो। और ये कलेक्टिव, देखो फेडरल डेमोक्रेसी है, तो सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने लोगों के लिए लेनी है, इसको पॉलिटिकल वॉर मत बना दो। और मैं जो जीएसटी कमेटी में, अगली बार आप इसको जीएसटी के अंदर लेके आओ, सारे इशू ही ख़त्म हो जाएंगे। और अब आप जैसे, अब देखो पॉलिटिकल लोगों ने तो स्टेटमेंट्स देनी है जो हाईलाइट बने, वो दूसरे पहले आप इंपोर्टेड लिकर का टैक्स मत कम करो, ये सुनने में बात बड़ी अच्छी लगती है। बीजेपी ने चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट के अगेंस्ट या शिवसेना गवर्नमेंट के अगेंस्ट दी है, ये बात सुनने में अच्छी लगती है, पर पेट्रोल पे भी टैक्स कम करने की ज़रूरत है, राइट। और हर एक आपको चीज़ को इक्वेट नहीं कर सकते, राइट। आपको ये देखना है कि अगर गवर्नमेंट का जो वैट है, अगर वो बहुत ज़्यादा है तो कुछ तो कंपनसेट करो अपने लोगों को, राइट। और ये बड़ा, पीएम मस्ट बी फीलिंग वेरी डेस्परेट कि उनको पब्लिकली बोलना पड़ा सबको। मैसेज तो पहले भी गए होंगे, तो इसका मतलब है कि कुछ स्टेट्स को ये बात सुनने की ज़रूरत है, ताकि अक्रॉस इंडिया, हम अगर 1 कंट्री की बात करते हैं, अक्रॉस इंडिया प्राइसेस सेम किए जा सकते हैं। अब लोग बोलेंगे हर स्टेट की इनकम सोर्स अलग है, उनके पास रेवेन्यू जनरेट करने की उतनी ऑप्शंस नहीं होती, तो सिर्फ इसी के थ्रू होता है, तो वो करनी पड़ेंगी कुछ तो। इससे सबको बेनिफिट, आम आदमी को बेनिफिट मिलेगा। सरकार फॉर द पीपल है ना, तो ये तो सोचना ही पड़ेगा हमें कि हम कैसे पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस वे आउट निकालें, टैक्सेस को ट्रांसपेरेंट करें, ताकि हमें पता हो हमारी गवर्नमेंट हमसे टैक्स कितना ले रही है। सेकेंड पार्ट ये हो कि हमारी इस पे डिपेंडेंसी भी कम हो। हम 85% अपना क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। हम इससे हम, जैसे पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे अभी थोड़े मिनट पहले, कि ऑल्टरनेट वे ऑफ जनरेटिंग एनर्जी मस्ट बी फिगर्ड आउट। ये हमारे देश की सस्टेनेबिलिटी और भविष्य के लिए बहुत ही ज़रूरी हो गया है। मतलब इसको एक नेशनल एजेंडा बना देना चाहिए। जैसे आप आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, चाहे मैन्युफैक्चरिंग में कर रहे हैं, पर एनर्जी में आत्मनिर्भरता बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है भारत जैसे देश के लिए। जी सर, लैंग्वेज इज़ द न्यू हॉट टॉपिक इन टाउन। जैसे ही अमित शाह जी ने बयान दिया कि इट शुड बी एक्सेप्टेड एज एन ऑल्टरनेटिव इंग्लिश की तरफ से, तो ये जो ट्विटरटीज़ हैं और ये जो फेमस आर्टिस्ट हैं अजय देवगन और सदीपा, कंट्रोवर्सी हो गई है इनके बीच में, काफ़ी चर्चा का मुद्दा है। तो इज़ लैंग्वेज न्यू डिबेट इन इंडिया? देखो, लैंग्वेज इज़ नॉट अ न्यू डिबेट, ये तो प्री इंडिपेंडेंस भी डिबेट है। देखो, आज अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि हम इंग्लिश
जब अगर हमें इंग्लिश में कम्युनिकेट करना है, हम उसको अपने ऊपर इम्पोजिशन नहीं समझते, पर हिंदी को हम इम्पोजिशन समझते हैं. इट शुड नॉट बी सीन एज एन इम्पोजिशन, इट इज़ सीन एज अ वे टू इंटीग्रेट. अजय देवगन जी शायद अपनी बात अच्छे तरीके से नहीं रख पाए, बट फैक्ट ये है कि आज रफली 60% लोग फ्लुएंटली हिंदी बोल पाते हैं अक्रॉस इंडिया. मैं आपकी अपनी बात करूं, अब हमारी मदर टंग पंजाबी है जी. तो अगर हमें हिंदी बोलनी पड़ती है, क्या हम ऑफेंडेड फील करें? नो, इट इज़ अ वे टू कम्युनिकेट. अगर एक बंदा मेरे को मिल रहा है जो दूसरी स्टेट से है, वाई शुड आई फोर्स हिम, और फिर इंग्लिश मैं अपने ऊपर भी फोर्स करूं और उस पर भी फोर्स करूं, विच इज़ एनी वे the language of people who ruled us, who exploited us for good 200-300 years. So why should I tell कि भाई हम इंग्लिश में बात कर लेंगे? बिकॉज ये मैं हमेशा बात करता हूँ, हमारा ना colonialism हमारे दिमाग से अभी गई नहीं है. हमें अभी भी लगता है इंग्लिश इज ओके. और देखो, पहले ब्रिटिशर्स की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी. अगर आपको इंटीग्रेट करना है थ्रू इंग्लिश ही करना है. अदरवाइज अगर नॉर्थ इंडिया की लैंग्वेज आपके ऊपर आती है, क्योंकि वो हमें तोड़ के रखना चाहते थे, तो आप उसको आपके दिमाग में एक ऑफेंसिव चीज माना गया, इंपोजिशन माना गया. तो इस माइंडसेट से इट इज अ वे टू इंटीग्रेट. उस दिन नवाजुद्दीन, हम मूवी इंडस्ट्री की बात, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, वो कह रहे थे कि साउथ में लोग अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं. डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, एक्टर हो, उनको समझ आती है बात. वेरी गुड, आप अपनी लैंग्वेज में बात करो. एडिशनल लैंग्वेज सीखनी है, हिंदी सीख लो. अगर आप किसी दूसरी स्टेट के आर्टिस्ट आपके पास आते हैं, इंग्लिश भी सीखो. इंग्लिश इज ऑल्सो गुड लैंग्वेज. कोई बुरी नहीं होती, पर उसका पर्पस होना चाहिए जोड़ने का. आज हमें इतने बड़े देश को, जितनी डाइवर्स सेट है, जोड़ना है, तो हम रेदर जो यहाँ की भाषा है उससे जोड़ें. सेकेंडली उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ पे सारे लोग इंग्लिश बोलते हैं, कि यू आर नॉट गेटिंग इट, इट शुड बी डन लाइक दैट. वो कह रहा है कि जो एक आर्टिस्ट है जिसको नहीं इंग्लिश आती, जो हिंदी समझ पा रहा है, ज़बरदस्ती उसको इंग्लिश सीखनी पड़ती है. इंग्लिश सीखो, आपको इंटरनेशनली भी काम करना है, बट हिंदी को इस तरह से ना दिखाया जाए कि ये इम्पोजिशन है. ये जो कुछ एक्टर्स हैं जिनका, और देखो ऐसा नहीं कि ऐसे बाय एक्सीडेंट हो रहा है, इसके पीछे कई सालों की जो नरेटिव बनाया गया ब्रिटिशर्स ने, यूरोपियंस ने, कि हमारे देश, क्योंकि अभी हम निकल रहे हैं, अभी तो 75 साल हुए हमें आज़ाद हुए, तो हमारे अंदर ये इनकलकेट किया गया कि आपने एक दूसरे को अलग देखना है और दूसरे की किसी भी बात को स्वीकार नहीं करना. तो मेरे को ये लगता है कि ये एक भाषा हो सकती है हमें जोड़ने की, इसको इम्पोजिशन की तरह देखा ही ना जाए. और ऐसा थोड़ा है हर रोज अपनी जो मातृभाषा है, तमिल है, उसमें बात करो. मैं एक वैसे हाइपोथेटिकल एग्जांपल आपको देता हूं. लेट्स सपोज कि 70% लोग या 65% लोग, जैसे 82% लोग हिंदी समझ पाते हैं आराम से इंडिया में. अगर 82% लोग तमिल समझ पाते और फ्लुएंटली 60% लोग तमिल बोल पाते, राइट, ये एक सबसे वाइड स्प्रेड लैंग्वेज होती है. और हम पंजाब से, हम पंजाबी बोलते हैं, तो क्या हमें ऑफेंस लेना चाहिए था कि क्योंकि ये एक सबसे कॉमन डिनोमिनेटर है, तो क्या हमें ऑफेंस लेना चाहिए था कि तमिल भी हमें सीखनी पड़ रही है? वाई नॉट? तमिल इज अ ग्रेट लैंग्वेज. अगर हम उससे सीख के हम एक नेशनली इंटीग्रेट हो रहे हैं, आप भूल जाओ कि आज हिंदी है फॉर हिंदी, इसमें हिंदी का क्या कसूर है? हिंदी तो एक लैंग्वेज है ना. बाई चांस ज़्यादा लोग समझ पा रहे हैं. अगर ये तमिल होती या बंगाली होती तो हमें वो सीखनी चाहिए थी, क्योंकि वो हमारे यहाँ की भाषाएं हैं. वो हमें एक कॉमन भाषा हमारी बंगाली हो सकती थी. आज इंग्लिश भी है, पर हिंदी राइट नाउ इज द मोस्ट वेल पोजिशन्ड. इसको आप किसी और, इसको अब देखो पॉलिटिकल पार्टीज का तो इंटरेस्ट होता है, जो रीजनल पार्टीज हैं वो तो इस बात पे अड़ी रहेंगी कि भाई हिंदी बोल दिया आपने तो हमारी आइडेंटिटी छीनने की कोशिश कर दी. क्योंकि उनका वो, अगर जो रीजनल पार्टीज हैं वो रीजनलिज्म के थ्रू ही चलती हैं, वो सेपरेशन से ही आप अपनी आइडेंटिटी बना पाती हैं. ये उनकी मजबूरी है. अब आपने अक्रॉस इंडिया, अगर आपने एक नेशनलिस्ट माइंडसेट, सबका इंटीग्रेटेड माइंडसेट बनाना है, तो देन सम लैंग्वेज हैज़ टू बी देयर. तो क्या आप एक यूनाइटेड इंडिया इंग्लिश के थ्रू बना सकते हो? दैट इज़ नॉट आवर लैंग्वेज, दैट इज़ द लैंग्वेज ऑफ आवर एक्स रूलर्स, जिनकी हम सब्जुगेशन में थे. तो हमें उस माइंडसेट से निकलना है. मैं कहता हूं कि तमिल, बंगाली, अगर बाई चांस, देखो फैक्ट्स चेंज नहीं किया जा सकते, अगर वो इतने वाइड स्प्रेड होती तो हमें हंस के, हम घर पे जितनी मर्जी पंजाबी बोलें और रोज बोलें, पर एक दूसरे स्टेट से बंदा आया है, उससे अगर हमने कनेक्ट करना है तो उसको रेदर एक हमारे लैंड की भाषा, उससे क्या है हम अपनी आइडेंटिटी बना पाएंगे. हम अपने आप को एक जो प्राउड है बीइंग पार्ट ऑफ इंडिया, जो आज अभी भी लैकिंग है. क्योंकि हमें लगता है कि वट एवर यूरोपियन सिविलाइजेशन जो हमें बता के गई है वो बेस्ट है, और वो अगेन वो एक्सीडेंटली नहीं हुआ है. उन्होंने बहुत एफर्ट लगाया है. उनके लिए ये अभी भी हम कॉलोनाइज्ड ही हैं.
उन्होंने अभी भी हमें यही बताना है कि ये बेटर है। तुम्हें ऐसे, अगर आप नेशनलिस्ट बात करते हो तो वेस्टर्न मीडिया लिख देगा कि देखो जी ये नेशनलिस्ट एजेंडा सब पे थोपा जा रहा है, जबकि अपने देश को वो एक देश की तरह ही ट्रीट करेंगे। उनके लिए नेशनलिज्म इज ग्रेट, वो अपने इंटरेस्ट के लिए पूरी दुनिया में कहीं भी बखेड़ा खड़ा कर देंगे, कहीं भी अटैक कर देंगे। पर अगर आप कह रहे हो कि हमें देश इकट्ठे होके और मजबूत होके चलना है, तो इसका मतलब वो क्या नैरेटिव क्रिएट करेंगे कि भाई एक सेट ऑफ पॉपुलेशन दूसरी सेट ऑफ पॉपुलेशन को दबाने की कोशिश कर रहा है। वो ऐसा ही नैरेटिव बार बार क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। अब हमें अपने नैरेटिव क्रिएट करने हैं। तो भाषा को सिर्फ भाषा की तरह लिया जाए, इट इज़ नॉट अ वे ऑफ रूलिंग यू, है ना। और अदर देन इंग्लिश, अगर हम इंग्लिश को ही एक सबसे प्रेफर्ड लैंग्वेज मानते रहेंगे तो हमारे दिमाग इंडिपेंडेंटली सोचेंगे नहीं। हम हमेशा ही थोड़ी सी एक, आज हम इंग्लिश बोल के लोग, मैं अपनी भी बात करूं, मैं पंजाबी मीडियम स्कूल में पढ़ा हूं, राइट, एक सर्टन एज तक, तो इंग्लिश बोल के मैं भी बड़ा अच्छा फील करता हूं, क्योंकि मेरा माइंड, चाहे मेरे को कुछ समझ आ गई है, पर जो इतनी जनरेशन से हमारे दिमाग में डाला गया ना, उससे अब हम निकलने की ज़रूरत है। हम हिंदी में अपनी चीज़ें समझ सकते हैं, हम बेटर डीपर समझ सकते हैं। आप माने चाहे ना माने, हमें जितनी मर्जी, हम जो जितनी डेप्थ से हम अपनी लैंग्वेज में समझ सकते हैं, पंजाबी में तो और भी बेटर समझ सकते हैं, राइट, हिंदी में हम बेटर समझ सकते हैं, राइट। तो मेरा ये व्यू है कि भाई इसको, लैंग्वेज को जोड़ने वाले तरीके से सोचा जाए, और हम एक बेनिफिट ऑफ डाउट दें अपनी गवर्नमेंट को भी कि वो भी जोड़ना ही चाहते हैं, वो देश को जोड़ना चाहते हैं, वो किसी को इम्पोज नहीं करना चाहते। कोई ये नहीं कह रहा है कि हिंदी स्पीकिंग इज बेटर देन तमिल स्पीकिंग, नो, दिस इज नॉट द रीजन। द रीजन इज इट विल मेक इट ईजी, इट विल यूनाइट अस, और हम एक दूसरे की बात को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। सर, और विश्लेषण चाहूँगी थोड़ा इस टॉपिक पे, इंटीग्रेटेड माइंडसेट की और नेशनलिज्म की आपने बात की है, जैसे शायद इसी से रिलेटेड है ये कि लीस्ट परसेंटेज ऑफ जनरल हिंदी स्पीकर्स आर इन तमिलनाडु, एंड तमिलनाडु हैज़ बिन कैंपेनिंग अगेंस्ट द आइडिया ऑफ दिस नेशनल लैंग्वेज। और ज़्यादातर स्टेट्स हैं सर जो नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया की, वो हिंदी बोलना पसंद करती हैं, लेकिन सदर्न और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो हिंदी बोलना पसंद नहीं कर सकती। सो व्हाट इज़ द आइडिया बिहाइंड द आइडिया ऑफ नेशनल लैंग्वेज? लुक, देखो, पहली तो बात आपने बोला तमिलनाडु पसंद नहीं करता, दैट इज़ रॉन्ग। तमिलनाडु में ये नैरेटिव बनाया गया है इतने सालों से कि भाई आप अगर हिंदी बोलोगे तो इसका मतलब आप अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर रहे हो। पहले तो उस नैरेटिव से हमें हटने की ज़रूरत है। और हमारे जो मूवी स्टार्स हैं उनको भी जस्ट बिकॉज कुछ शॉर्ट टर्म फैंस गेन करने के लिए ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जो लोगों को डिवाइड करें। और चाहे नॉर्थ ईस्ट है चाहे ये है, तो एक कॉमन लैंग्वेज तो बनानी पड़ेगी। और अगर बच्चे एक और लैंग्वेज सीख लेते हैं, क्या वो तमिल भूल जाएंगे? आपने हिंदी सीखी है, आप अभी इतनी फ्लुएंटली हिंदी में बात कर रहे हैं, तो क्या आपको पंजाबी भूल गई? सो हमें इसको इस तरीके से देखना है कि ये लैंग्वेज हमें जोड़ रही है। और सर्टन रीजन्स में, देखो, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है इसका, कि जब मैसूर प्रेसिडेंसी बनाई गई, वहाँ के पॉलिटिशियंस को एक सेपरेट, ताकि वो नेशनल इंडिपेंडेंस मूवमेंट से थोड़ा कटे रहें, हालांकि उन्होंने भी देश के इंडिपेंडेंस में बहुत फाइट की, ये उसके लिए ये हमारे अंदर डिवाइड एंड रूल वाली स्ट्रेटजीज के कारण आ गया है। फिर दूसरी बात, आज से आप 100 साल पहले इतनी इंटीग्रेशन होती नहीं थी। लोग कहाँ ट्रैवल करते थे, कहाँ पे ऐसे मोड्स थे कि आप हमेशा बात करेंगे? आज इसकी ज़रूरत भी है। सेकेंडली, अगर हमें अपना एक इंडिपेंडेंट इंडिया बेस्ड माइंडसेट बनाना है और नैरेटिव बनाना है, तो हमें एक लैंग्वेज, आपकी टीम जब बाहर ट्रैवल करती है, राइट, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आते हैं, उनको क्या जोड़ता है? हिंदी जोड़ती है, इंग्लिश नहीं छोड़ती है। जब उन्होंने एक स्ट्रेटजी बनानी है कि जो दूसरी टीम को ना पता चले, वो हिंदी है। मेरे को लगता है हिंदी को पहले तो एक जोड़ने वाली और एक रेवर्ड लैंग्वेज की तरह देखना चाहिए। जब तक मीडिया में ये नैरेटिव चलता रहेगा, इसको शक की नज़र से देखा जाएगा, तब तक लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे? आप जब बता रहे हो कि शायद आपकी आइडेंटिटी चले जाए, पक्का ना भी हो, तो बंदा बोलेगा मैं क्यों गवाऊं, उस पर रिस्क ही क्यों लूं, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। इसके पॉजिटिव्स ही पॉजिटिव्स हैं, इसके कोई नेगेटिव नहीं है। अगर कोई कह रहा है कि इससे तमिल आइडेंटिटी या नॉर्थ ईस्टर्न आइडेंटिटी, हम नॉर्थ ईस्ट में भी अलग अलग स्टेट्स हैं, हम उनको, क्योंकि अभी तक ऐसे देखते हैं, आज हमारे हमारी गवर्नमेंट नॉर्थ ईस्ट को भी इंटीग्रेट करने में पूरा जोर लगा रही है, उससे बेनिफिट ही हुआ है। वहाँ पे जो अनरेस्ट हैं वो कम ही हुए हैं, राइट। तो हमें एक इंटीग्रेशन तो करनी है, राइट। इसके कोई नुकसान नहीं है, इसके बेनिफिट हैं। आप अपनी कोई ना भाषा लूज़ कर रहे हो ना आइडेंटिटी लूज़ कर रहे हो। ये क्वेश्चन ही जब आते हैं, क्योंकि इसमें हम लोगों की भी गलती नहीं, हमें भी 150 सालों से यही सिखाया गया कि सोचो कि अगर हिंदी आई तो क्या आप
पंजाबी नहीं रहोगे, कि आप तमिल नहीं रहोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमें इस अजम्पशन को ही, अजम्पशन ही गलत है, इस अजम्पशन को खारिज करने की ज़रूरत है इस वक्त। सो थैंक यू सो मच फॉर योर व्यूज सर। ऐसे ही इंपॉर्टेंट और मीनिंगफुल डीप एनालिसिस के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ एंड डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डाउनलोड आवर ऐप।